Hello and welcome to another very interesting talk show with Dr. Vikas Kumar Agarwal, as you can see on my left, and one of the finest oncosurgeons we have in our country. And more importantly, he is a fantastic human being, as you all know. But today's discussion is, of course, for awareness purpose, and the subject, as you can understand, it's a very important question which you have, or rather, each of you have in your mind. Is cancer curable? There are a lot of insights which we'll be talking about today. A few you might know, if a few you might not as well. Shawaragi Sirke, welcome to the show, sir. It's a very warm afternoon, but at the same time, I firmly believe that there are such things, কিছু জিনিস এমন আছে যেগুলো শুনলে অ্যাটলিস্ট মনকে শান্ত রাখা সম্ভব হয়। তার মধ্যে একটা অবশ্যই ক্যান্সার এমন একটা সাবজেক্ট যেটা নিয়ে প্রত্যেকের মনেই একটা ভয় থাকে যে ক্যান্সার হলে আদৌ আমি সারবো তো। আর প্রথম প্রশ্ন সেটাই যে ক্যান্সার থেকে সম্পূর্ণ নিরাময় এটা এটা কতটা সম্ভব? এটা সম্ভব, খুবই সম্ভব। यस, वी कैन क्योर कैंसर। कैंसर से इलाज संभव है अगर समय रहते सही समय पे सही इलाज सही डॉक्टर से कराया जाए। ক্যান্সার को जीतना संभव है। নিরাময় করা যেতে পারে যদি আমরা ঠিক সময় ঠিক ডিসিশন নিয়ে ঠিক ডক্টরের পরামর্শটা ফলো করি। অ্যাবসলিউটলি, অনেকের ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা যেটা হয়, আমার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন অবশ্যই সেটা নিয়ে যে অনেকের ক্যান্সার হয়তো নিরাময় হয়ে যায়, তারপরে 4 বছর 5 বছর পরে সেই ক্যান্সারটা আবার ফিরে আসে। এটা কেন হয়? ক্যান্সার ফিরে আসতে পারে, তাই জন্যে আমরা ক্যান্সার থেকে ভয় করি, আতঙ্কে থাকি, কিন্তু আতঙ্কে থাকার দরকার নেই। উই কেয়ার ক্যান্সার সেন্টারে আমরা তাই জন্যে ওদের জন্য লং টার্ম পার্সোনালাইজ ফলো আপ প্ল্যান বানাই। আমরা কি হয় না, ক্যান্সার চিকিৎসার সময় তো অনেকজন এসে যায়, ফ্রেন্ডস রিলেটিভ সবাই সাপোর্ট করার জন্য এসে যায়। তারপরে ধীরে ধীরে ইটস এ লং টার্ম ট্রিটমেন্ট, 3 মাস 6 মাস, তারপরে লোকেরা ফেড আউট হয়ে যায়, ইভেন ফ্যামিলি মেম্বার্সও টেক ইট ফর গ্রান্টেড হয়ে যায় অ্যান্ড রেগুলার ফলো আপটা মিস করে দিই। দ্যাট ইজ ওয়েয়ার উই মিস ইট। তো যদি আমরা রেগুলার ফলো আপে থাকি, যদি ক্যান্সার ফিরছেও ওই আগুনের কোনার মতন অবস্থায়, যখন আবার ফেরার সন্দেহ হচ্ছে, আমরা স্ক্যানিং টেস্টিং করে ওকে ডিটেক্ট করে আবার নির্মূল और निरामय করতে পারবো। तो समय रहते अगर रेगुलर फॉलो अप किया जाए तो कैंसर वापस आने की जो रिस्क रहती है उसको भी हम कम कर सकते हैं या एकदम अर्ली स्टेज पे वापस डिटेक्ट करके निर्मूल करना संभव होता है। ক্যান্সার থেকে সাময়িক নিরাময়ের পরে এটা অনেকেই এটা করে থাকেন যে যখন তার ওই কিওর প্রসেসটা চলছে, যখন তার সেই ট্রিটমেন্ট প্রসেসটা চলছে, সেই সময়টা সে সাংঘাতিক মেনে চলে, সমস্ত কিছু ডিসিপ্লিন থাকে। দেন হঠাৎ করে ওই কিওর হয়ে যাওয়ার পর তার মনে হয় যে আমার তো আর ক্যান্সার নেই, আমি আবার বোধহয় যেরকম আগে জীবনযাপন করতাম সেরকম করতে পারি। এবং এর ফলে ক্যান্সার থেকে সম্পূর্ণ নিরাময়ের প্রসেসটা কতটা ডিলেড হতে পারে বলে আপনার মনে হয়? একদম পারফেক্ট কোয়েশ্চেন। আমি এখানে ক্লিয়ার কাট এক্সাম্পলস দিতে পারি। একটা ওরাল ক্যান্সার যেটা ইন্ডিয়াতে মোস্ট कॉमन कैंसर, ओके, तो ओरल कैंसर हो गया, इलाज हो गया, सब ठीक हो गए एंड पेशेंट वापस सेकंड ओरल कैंसर लेके आ रहा विद इन अ ईयर। तो हिस्ट्री लिए, इलाज किए, वापस थर्ड टाइम वापस जब आ रहा है तो मैंने पेशेंट पार्टी और ओटी में ले रहे हैं, पेशेंट की वाइफ बिहार से आई हुई है, बहुत डिस्टर्ब्ड है, टेंस्ड है। तो बोलती है कि डॉक्टर साहब ये तंबाकू नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। সি ক্যান্সারে দুবার ওরাল ক্যান্সারের সার্জারি হয়ে গেছে, তারপরে থার্ড টাইম ফিরে এসেছে, তবেও নিজের ওয়াইফই বলছে ये तो नहीं लेंगे तो ये तो जिंदा नहीं रह सकते हैं। সো যখন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে তখন বন্ধ করা হলো, কিছু মাস পরে আবার চালু করে দেওয়া হলো। सिमिलरली এটা ওরাল ক্যান্সারের ক্ষেত্রে বললাম। एक रिसेंटली हावड़ा से एक पेशेंट है, मैडम है, उनका ब्लडर कैंसर का इलाज हुआ था। सो ब्लडर कैंसर में अब कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं, जिसमें से एक रिस्क फैक्टर ओबेसिटी और ये है। तो जब ट्रीटमेंट हुआ है, अभी 1.5 साल बाद जब वो फॉलो अप पे आई
वजन 15 किलो बढ़ा के आई। बोले सर मैंने वाह। साल भर तक तो सब एकदम अपने आप को मेंटेन किया, अब साल भर के बाद से अब मैं सब कुछ खाती हूँ, एकदम आराम कर रही हूँ। तो यू आर, जो सुमन क्वेश्चन किए हो आप, दिस इज समथिंग वी टेक इट एज अ कॉम्प्लासेंसी, हम लोग उसको छोड़ देते हैं, ओ अब क्या है, अब कुछ नहीं। नहीं, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल is the cure for success, cure for healthy life, and it's a tonic for you to keep you healthy mentally, physically, and also from cancer. অ্যাবসলিউটলি। ইনি আরো একটা প্রশ্ন যেটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, যেটা হচ্ছে এটা সাধারণভাবে অনেকের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাদের মধ্যে হয়তো আর্লি ক্যান্সারের সিমটমস রয়েছে। একটু আগে যেটা আপনি বলছিলেন, আর্লি ডিটেকশন ইজ পসিবল, মানে ক্যান্সার ইজ কিউরেবল ইফ ইটস ডিটেক্টেড আর্লি। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমরা অনেকে বুঝতেই পারি না যে হোয়াট আর দ্য আর্লি সাইন্স যেটার জন্য এটা সম্ভব। তো হ্যাঁ, खूब কি কি भालो সিমটম? प्रश्न कि जनरल पब्लिक सवाई तो बोले ना, अरे डॉक्टर साहब पता ही नहीं चलता, स्टेज 3 में पता चलता है या स्टेज 4 में पता चलता है। अगर हम लोग चीज को आंख से देखने के बाद भी आंख बंद कर ले तो ऑब्वियसली लेट स्टेज होगी। आज इस लाइव का उद्देश्य यही है कि हम आपके पास ये मैसेज पहुंचा सकें, कब आप जागरूक हो, कोई सिम्टम्स लाइक मुंह में या कहीं पे भी कोई घाव अगर सूख नहीं रहा है 3 सप्ताह तक, कोई लंप जो कि पेनलेस लंप हो, चाहे वो गले में हो, पेट में हो या ब्रेस्ट में हो, कहीं पे भी, या स्किन में कोई सडन चेंज ऑफ कलर ऑफ मोल या आंचिल या जिसको तिल कहते हैं उसके कलर में परिवर्तन अचानक हो गया, साइज बढ़ने लग गया हो, कहीं से भी प्रोलॉन्ग खांसी रह रही है, आवाज भारी हो गई है, ठीक नहीं हो रही है, या खाने में डिफिकल्टी हो रही है, या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो मुंह से, खांसी में, पेशाब में या पैखाना में, या अननेसेसरली हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हो रहे हैं, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड हो रहे हैं, ये कॉमन सिम्टम्स जैसे ही आए आप एक स्पेशलिस्ट से, मैं अगेन एम्फसाइज कर रहा हूँ, स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं। Absolutely. And this is the reason why I'm saying যে এই জিনিসটা আমি জাস্ট আই ওয়াজ গোয়িং থ্রু আ ডেটা, যেখানে এরকম প্রচুর কেসেস হয় যেগুলোতে সেকেন্ড বা থার্ড স্টেজে গিয়ে লোকে ডক্টরের কাছে পৌঁছয় যে আই এম হ্যাভিং ক্যান্সার অর সামথিং লাইক দিস অর দ্যাট, এবং সেটার জন্য নেগলিজেন্স প্লেজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। সে হয়তো বুঝতেও পারছে ডিপ ইনসাইড যে দিস ইজ নট নর্মাল। তাদের জন্য কি বলবেন? सो सुमन, इसमें मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगा। ये ज़्यादा कॉमन है इंडियन मेल फीमेल्स में, कारण है इसके सोशल फैक्टर्स को भी हम एक सोशल प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर रहे हैं, और आज मैं 25 साल से पेशेंट से डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्ट कर रहा हूँ, एंड रियली वी गेट अ पेशेंट्स। एक ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स बिहार से आई थी, पढ़ी लिखी थी, घर में एक आईएएस ऑफिसर हैं, एक डॉक्टर है बेटी, और तीसरी बेटी पढ़ाई कर रही थी, और दूसरी बेटी जो डॉक्टर हैं वो डेंटल डॉक्टर, उनके हस्बैंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। जब वो माँ के घर आती है तो देखती है कि ब्रेस्ट का साइज बहुत डिफरेंट है, 3 to 4 times कंपेयर टू राइट ब्रेस्ट, लेफ्ट ब्रेस्ट वाज 4 टाइम्स। इमीडिएटली वो माँ को बोलती है क्या हुआ है, तो देखती है एक बहुत बड़ा ट्यूमर है। उनके जवाई मेरे को इमीडिएटली कनेक्ट करते हैं कि सर देखना है आपको। मैंने इलाज किया, सब कुछ हुआ कंप्लीट, एजुकेशन, पैसों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ। तो लास्ट में मैंने जब वो ठीक हो गई तो मैंने उनसे पूछा, माता जी ये तो नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा था? हाँ, दर्द नहीं था, दर्द रहित गांठ इज वेरी कॉमन इन कैंसर। बोला डॉक्टर साहब मेरी छोटी बेटी की शादी नहीं हुई है, अगर समाज में पता चल जाएगा मेरे को कोई ट्यूमर या कैंसर है, हो सकता है उसके शादी में प्रॉब्लम आए। सो दे आर सोशल फैक्टर्स, पेशेंट कई बार जान के भी रोकते हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, क्लास 10-12 के सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड्स के एग्जाम्स थे, तो अब उस समय क्या होता है, अगर माँ को कुछ पता चल रहा है तो बोले कि नहीं बच्चे का एग्जाम है, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, या हस्बैंड का भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, खर्चे बहुत हैं, कहीं डॉक्टर के पास जाएंगे तो खर्चे लग जाएंगे। सिमिलरली फॉर अ मेल पर्सन,
पिछले सप्ताह एक पेशेंट आया था यहाँ पे गांठ लेके, उनकी वाइफ का ऑपरेशन मैंने 2007 में किया था, ब्रेस्ट कैंसर। तो क्या बोले हमको अचानक दिखा, अब ये बोल रहे हैं कभी 3 साल 2 साल से है, क्यों नहीं दिखा रहे हैं, डर लग रहा है कहीं कैंसर निकल गया तो, जबकि घर में ही 18 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हो कि उनकी वाइफ ठीक हो चुकी है। तो इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि एक पता होता है, एक फिनेंशियल रिस्क है, या फिर सोशल फैक्टर्स हैं, एंड लास्टली डर लगता है बीमारी का, इसीलिए लोग डिले करते हैं। অ্যাবসলিউটলি। এটা নিয়ে আমার পরবর্তী প্রশ্ন যে এক্স্যাক্টলি কি কি ধরনের টেস্ট করলে আর্লি স্টেজ ক্যান্সার ডিটেক্ট করা সম্ভব? প্রথম सबसे पहला चीज जो करना है आपको, প্রথম সবথেকে আগে নিজের শরীরকে চিনুন। শরীরে কোনো পরিবর্তন যদি হচ্ছে इग्नोर করবেন না। अगर शरीर में जो मैंने चेंजेस बताया कोई भी सिम्टम्स हो, उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको फेस कीजिए एंड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। सेकेंड, सो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर যদি এক্সামিন করবে, স্পেশালিস্ট এক্সামিন করবে। সেকেন্ড, কিছু ব্লাড টেস্ট, sometimes ultrasound, x-ray or a CT scan, even a PET CT if required. And to confirm cancer you might require a FNAC or a biopsy. So एक सब टेस्ट हमारे वीके कैंसर सेंटर में एक्सपर्ट के परामर्श के बाद किए जाते हैं, उनकी निगरानी में होते हैं, फटाफट रिपोर्ट्स आती है, विद इन डेज हम लोग कैंसर को डायग्नोसिस कर देते हैं। नहीं तो आदमी घूमते घूमते हफ्तों महीने लगा देते हैं, वहाँ पे भी स्टेज प्रोग्रेशन हो जाती है। तो कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट एंड please emphasize on a fast decision and fast decision making and results. একদমই। আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে আমাদের লাইফস্টাইল নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন ওঠে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে। লাইফস্টাইল চেঞ্জেস ক্যান্সার নিরাময়ের ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ? Lifestyle is the root cause of cancer. যদি কোনো जंगली घास को अगर निर्मूल करना है, हटाना है, निरामय करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल ऊपर से जंगली घास को काट दें तो वापस आ जाएगी। सिमिलरली कैंसर के से अगर बचना है हम लोगों को, वी हैव टू uproot what, द बैड लाइफस्टाइल हमने इन सालों में, इन दशकों में एक्वायर की है। सो लैक ऑफ एक्सरसाइज, अब तो ये अवस्था हो गई है, फोन इज यूनिवर्सल रिमोट, यहीं से बटन दबता है, फैन चलता है, यहीं से एसी, यहीं से खाना टक टक टक, रात को 2 बजे भी ऑर्डर हो जा रहा है। एंड लोग एक्सरसाइज हो सकता है बहुत ज्यादा कर रहे हो, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर रन कर रहे हो, एंड पंचिंग कर रहे हो, सब कुछ कैंडी क्रश या टेम्पल रश। सो सब कुछ वो 6 इंची के फोन पे आ गया है। वी हैव टू गेट आउट ऑफ द बेड, we have to go into the open air, do exercise, control your diet, regular fat control, and limit alcohol, tobacco, and all the junk foods. Most important factor for almost 20 cancers directly, it has been proved, New England Journal of Medicine 2023, it has been published किया हुआ है रिसर्च के बाद, obesity is linked to 20 cancers directly, apart from other diseases, non-communicable diseases also. My next question is of course regarding biopsy. আমার প্রশ্ন হচ্ছে বায়োপসি কি সব ধরনের ক্যান্সার ডিটেকশনের ক্ষেত্রেই রিকোয়ার্ড? No, but biopsy is the gold standard in many cancers. There are few cancers in the body যেগুলোতে আমাদের বায়োপসি আর দরকার করতে হয় না। প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার, গল ব্লাডার ক্যান্সার, ওভেরিয়ান ক্যান্সার, এইগুলোতে, ইভেন টেস্টিকুলার ক্যান্সার আমরা রেডিওলজিক্যাল বেসিসে চিকিৎসা করে দিই, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাকসেপ্টেড। প্যানক্রিয়াসে এখন US গাইডেড FNAC করেও করা হয়। রিসেন্টলি আই হ্যাভ ডান আ ভেরি রেয়ার ক্যান্সার, প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার,
which was not diagnosed even in the internationally. They came from different country, got it diagnosed and treated. But all other solid cancer, biopsy is the route. Liquid cancer means ব্লাডের মধ্যে যেগুলো ব্লাড ক্যান্সার গুলো হয়, ওটা ব্লাড ক্যান্সারের সন্দেহ হয়, তারপরে জেনেটিক টেস্ট করার জন্য হয়তো বোন ম্যারো বায়োप्सी ওর জন্যও লাগে। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ, सुमन सर ने मेरे को कहा आम जनता के लिए हिंदी और बंगला मिक्स करके, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राउड इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, कि बायोप्सी कैंसर फैल जाएगा, टच मत करना, हाथ मत लगाना, छुरी लगाने से ही फैल जाता है। एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हमारे देश में कि पेशेंट 70 to 80% ऑफ द पेशेंट कम्स इन स्टेज 3। उनको पता चलता है, अगर किसी डॉक्टर ने बायोप्सी बोल दिया, वो डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, फिर एक डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, फिर एक डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, इस तरह करते करते स्टेज बढ़ जाती है। तो मेरा आपसे आग्रह है, डरिए मत, सही जगह पे सही जांच सही समय पे करने से कैंसर क्योर करना संभव है, कैंसर को निरामय करना খুবই পসিবল আছে, ইজিলি পসিবল আছে আজকের যুগে আমি বলবো। এটা নিয়ে আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে আমাদের দেশ এমন একটা দেশ যেখানে সুপারস্টিশন ইজ ইন দ্য ভেইনস, এবং সেখান থেকে দাঁড়িয়ে প্রচুর মিথস আছে যার সঙ্গে হয়তো সায়েন্সের কোনো সম্পর্কই নেই। What are the myths which delay the treatment of cancer? सुपरस्टिशन तो आपने जो कहा बहुत ही कॉमन है। अगर रास्ते में जा रहे हो, हाईवे पे भी हो, काली बिल्ली अगर रास्ता क्रॉस कर गई तो गाड़ी रोक देंगे, पीछे से चाहे ट्रक आके मार जाए। So that is something, there is too much of anything is bad. That's a completely different topic. तो ये जो टॉपिक है कि अभी ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, इसीलिए कुछ टेस्टिंग नहीं कराएंगे, या बायोप्सी करने से छुरी लगने से फैल जाएगा, सर्जरी कराने से कैंसर फैल जाएगा, ये जो कीमोथेरेपी से तो पूरा शरीर जल जाएगा। और सबसे बड़ा मिथ है, कैंसर माने मृत्यु, कैंसर मतलब मौत। तो क्या करने की जरूरत है, कोई टेस्ट मत कराओ, कुछ मत कराओ। तो ये जो भूल धारणाएं हमारे समाज में रूढ़िवादियों की तरह जमी हुई है, आज से 100-150 साल पहले जैसे लॉट ऑफ समाज में कुरीतियां थी, उसको भी हमने अवेयरनेस के माध्यम से अपरूट किया, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो चाइल्डहुड मैरिज हो, लॉट ऑफ वर देयर। So we need to uproot this myths from the society that कैंसर मतलब मौत नहीं है, कैंसर मतलब जिंदगी को नए तरीके से जीने का मौका मिल रहा है आपको, नए एंगल से उसको देखिए। एंड वी हैव अ ह्यूज एग्जांपल्स। लोगों को तो कुछ सेलिब्रिटीज दिखते होंगे, मेरे लिए मेरे वो ही लाखों पेशेंट्स जो मेरे पास आए हैं, दे आर द बिगेस्ट सेलिब्रिटी फॉर मी एंड वी सैल्यूट दैट, कि इस तरह से की बीमारी से भी लड़के वो पूरा जिंदगी नॉर्मल जी रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, लाइक these days even when the technology, the knowledge has gone to a different extent altogether, एक डर सभी के मन में रहते हैं कि अगर कैंसर हुआ है तो सर्जरी करना ही पड़ेगा, और सर्जरी अगर करना पड़े तो इनफैक्ट वी आर इन अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर। Myth versus fact. Come again, Suman. My question is, abhi bhi, I mean, we are living in 2025. There is a dar in everyone's mind that अगर कैंसर होता है तो सर्जरी करना ही पड़ेगा, और अगर सर्जरी होता है तो we are in a spot of bother. Myth versus fact. हर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए की सर्जरी जरूरी है? हर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी जरूरी नहीं है, पर अगर जो मैंने कहा सॉलिड कैंसर एंड लिक्विड कैंसर, जो कैंसर पूरे शरीर में फैला हुआ होता है, मींस ब्लड कैंसर, ल्यूकीमियास, लिम्फोमास, मल्टीपल माइलोमास, इनके लिए कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है।
जस्ट हो सकता है एक बायोप्सी लगे टू कंफर्म लिम्फोमा है या ल्यूकीमिया है, तो किस तरह के जेनेटिक चेंजेस हैं उसमें। और सॉलिड कैंसर में ये नॉलेज जानना जरूरी है। अगर आपका कैंसर क्योरेबल है, सर्जरी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर कैंसर फैल चुका है पूरे शरीर में, कई बार मैंने दुख होता है, लोग आते हैं, डॉक्टर साहब अभी इनका कैंसर में तो सर्जरी लगेगी नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमें यही बताना पड़ता है कि स्टेज 4 कैंसर है तो सर्जरी करके कोई फायदा नहीं है। अर्ली स्टेज में सर्जरी कैन बी द ओनली क्योर। स्टेज 1 कैंसर में हो सकता है, अगर इतना अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़ लिया। आई हैव अ पेशेंट फ्रॉम दुर्गापुर, वी सुखविंदर कौर उनका नाम भी ले रहे हैं क्योंकि वो खुद चला के कई बार इंटरव्यूज दे चुकी हैं। और वो एक इतना से मटर के दाने से छोटा ब्रेस्ट लंप लेके आई थी, उनको गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाई तो उन्होंने कहा इसको पहले देखिए। गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि नहीं अभी रुक जाइए, हो सकता है हार्मोन से ऐसे ही हुई होगी। बोला नहीं, मेरा पहले इसका इलाज कराइए। आज उनका स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर था, हमने स्कारलेस, बिना एक स्कार के ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, no radiation, no chemotherapy, just a hormone tablet, and it is more than 8 years. She runs a business in Durgapur, a dhaba in the Durgapur highway, and she is the self-made lady. इसी तरह से अगर सही समय पे आप डरे नहीं और जो सही इलाज है उसको फॉलो करें तो क्योर संभव है। भूल धारणाओं को मन में बैठाने से, आप ऐसे लोगों से पूछ रहे हैं जिनको जिंदगी में हो सकता है उन्होंने एक भी कैंसर ना देखा हो, और आप उनकी राय फॉलो करते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, जो सालों से केवल कैंसर का इलाज कर रहे हैं, आप उनसे सलाह लें, रादर देन जिनको कुछ नहीं पता है आप उनकी बातें सुन के गलत राह पे चल रहे हैं। फैमिली मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, दे आर द बैकबोन्स, दे आर द पिलर्स। किंतु आज मेरी बैकबोन से मैं सीधा बैठा हूं, मेरी बैकबोन्स मेरा हाथ का काम नहीं कर सकती है, मेरी बैकबोन मेरे को चलने में सहायता नहीं कर सकती है, किंतु मेरी बैकबोन के कारण, स्पाइन्स इरेक्ट होने के कारण मैं सही कोऑर्डिनेशन करूंगा। तो आपने, आपके फैमिली मेंबर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है टू हेल्प यू साइकोलॉजिकली, फिजिकली, फिनेंशियली, और जितने सपोर्ट चाहिए। बट डिसीजन मेकिंग ऑफ अ कैंसर ट्रीटमेंट, I think it should come from the oncologist or the trained doctors. Absolutely. It's such an intriguing discussion that we should need another episode on this. This is the part 1, I could say, because it's already, I mean, the last 24 minutes we have been discussing about a lot of aspects of cancer. I'm sure that, I mean, the first episode on is cancer curable will help you to have a very, very strong and solid knowledge about the cancer awareness and prevention, which VKR Cancer Center and Dr. Vikas and ma'am, Dr. Vibha Agarwal, they have been doing since ages now. And I'm sure, like, I mean, the motto is pretty simple of VKR Cancer Center, that even if you can help one person aware of this wonderful, wonderful campaign, I mean, he or she can be saved from the deadly disease of cancer. And that's the success of VKR Cancer Center over the years. That we have tried to inspire people, even if it's one person, 2 people, 3 people, 5. That's a success rate because we have saved those 5 people from the deadly disease of cancer. Thank you so much. One thing here, Suman, what Suman said, because this is a series, and we would request you, urge you to share this as much as you can. Correct. Share as a story, and feel free to ask the questions in the comment section. We'll take up live with you, and we will answer in the next session. If you are seeing later on this session, once it is live is over, don't get ashamed. Ask all the questions. We'll look into it. Suman will look into it and make sure that all those questions are answered. Yes, over to Suman. Absolutely, and that is the reason why I'm telling, like, this is just the first episode. We'll certainly come up with another episode on this, and I'm sure that you might have a lot of questions in your mind which you can throw
on our social media handles across, and then we can certainly take these questions and we'll certainly ask Dr. Vikas Kumar Agarwal so that your questions will get answered. Of course, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Don't forget to follow our Facebook page and Instagram handle. Thanks for joining us. Thank you.